So, very good evening to all of you. Hope I'm audible. All right, perfect. Perfect, Susan. ठीक है, fine, cool. So, how are you all doing, first of all? All right, so everybody seems to be very excited. Great to see that. I am perfectly fine, doing well, and I'm there in front of all of you today. Let's just with the session. First of all, a very warm welcome to all of you on this platform. Yes, so students, since it's the beginning of the session, and I want that each one of you should start with a basic thing, which we'll be covering. Just give me a second. Okay, yes, please बताइए क्या problems है, किसकी क्या problems है. So आज हम सब कुछ basic से start करेंगे. कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि we'll be going to the higher level or we'll be just jumping up onto the advanced one. We'll be starting from it'll be zero to hero. I must say that, right? And from basic to advanced, yes. So if we talk about banking sector and then we talk about English, so English का first version I must say will be SVA. SVA is the subject verb agreement. I never fail to make my dear students understand about subject verb and agreement because students अगर आपको subject नहीं पता, trust me, अगर subject नहीं पता, अगर verb नहीं पता, तो English I believe it's a very unknown thing to all of us. Then it's a stranger to all of us, I must say. And on contrary, अगर आपको POS नहीं पता, including me, including all of you, अगर आपको POS नहीं पता, which comprises of all the number of things which is covered into parts of speeches like nouns, pronouns, adjective, adverbs, interjections, conjunctions. अगर ये सब भी नहीं पता, then again English is a very stranger to all of us and it will be always behave like that. So coming back onto the point, हम लोग सब ये चीजें turn wise करेंगे. First of all, am I clearly understandable if I'm speaking English, or you want me to be bilingual? फटाफट से टाइप इन कीजिए. इंग्लिश में बोलूं स्टूडेंट्स की, हिंदी में बोलूं, या मिक्स चलेगा, bilingual? Because there were students at the time of admission who told me कि मैम bilingual ही होगा. Mix. Okay, if you are saying both, if you are saying mix, if you are saying yes. Yes for what? Only English. Okay, so majority is English would be fine, but few are also saying both. So since I have to make sure each one of you is comfortable, I'll be using the bilingual language then. Okay? That's great. Alright, so students अब हम बात करें तो हम directly previous year questions पे कभी भी नहीं जाएंगे. That's my foremost agenda of my teaching way, my teaching style, because I always focus कि पहले हम grammar के rules को कर लें. I always focus to cover the grammatical rules. अगर हमने grammatical rules ही नहीं समझे, तो be it today, be it tomorrow, maybe be it at the time when you're really writing your exam, or you're in the examination center, you will never ever understand how to solve that particular question. So the logic and the reason behind that is the grammatical errors and the grammatical rules, which is the foremost thing. And that's the only thing which will take you to par. Trust me on this. All right. Yes, I think English will be more perfect, rather the way we'll be communicating here. Alright, so first of all, मुझे अपना नाम बताइए, ये कौन है? Newspaper reading करने का मन नहीं करता, very boring. It's written student, so I'm not able to get your name. Okay, Francis. Alright. So Francis, I'll tell you a way out how to go with the paper. I am just give me a second to just clear it up. अब स्टूडेंट्स अगर हम एक मस्ट डू चीजें करेंगे पहले तो कि व्हाट इज द मस्ट डू जो हमें करने ही करने हैं इफ वी आर एन एस्पिरेंट एंड इफ वी आर प्लानिंग एंड डिसाइडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम.
अमित इज सेइंग मॉक टेस्ट में 10 मार्क्स आते हैं। सो कोई बात नहीं, ये 10 ही आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। कमिंग ऑन टू द पॉइंट, आवर फर्स्ट पॉइंट इज दिस ओनली, दैट न्यूज़पेपर रीडिंग। अब मैं एक तरीका आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबली आई विल आल्सो ट्राई टू गेट इन सम good strategies for each one of you to understand how to read the newspaper and how to go by it. Secondly, I would let each one of you know about The Hindu and Indian Express. So students, if we talk about aspirants of banking and SSC, if we talk about aspirants of UPSC or UPPSC or maybe for some higher exams as well, पेपर हमेशा वो पढ़ो जिसमें एक प्रिसाइज और कंसाइज और एक एप्ट न्यूज दी हो, ठीक है। बहुत न्यूज़पेपर्स ऐसे भी हैं जिसमें फालतू की न्यूज बहुत सारी होती है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, आप 20-30 मिनट मत लगाइए। आई नो सिंस यू ऑल आर बिगिनर्स इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जो भी बोल रहे थे कि मैम पढ़ने को मन नहीं करता है न्यूज़पेपर, इट्स वेरी बोरिंग एंड ऑल, आई डू अंडरस्टैंड। आप लोग एडिटोरियल पार्ट उठाओ उसका, डोंट गो टू फलाना ढमकाना का न्यूज, जस्ट पिक अप द एडिटोरियल पार्ट। अगर आपने एडिटोरियल उठा लिया, सो नाउ आई टेल यू हाउ टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड योर pronunciation, and of course, why not, your writing skills to improve in English. So this is the only technique, guys. This is the only technique. Mind it, just put it here. So I'll tell you how. Editorial आप सभी लोगों ने पढ़ा, उसको अच्छे से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगा के पढ़िए, because you're a beginner. And then thereafter, you have to shut down the newspaper, और probably अगर आप आजकल तो फोन से पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर को, तो फोन को साइड पे रखिए, try to write whatever you have gathered, whatever you have understood. So just be very precise, just be very crisp. So that will be the summarization. Basically, you'll be summarizing what you have read. Clarity समझ आ रहा है सबको? Just put a thumbs up if you're understanding, or put a yes over there if you're really just getting what I'm trying to tell all of you. Very good. Or do you think any of you think that I'm too fast, let me know. I'll be quite on a slower version then. Yes, so for जो students पूछ रहे हैं any application of the newspaper, yes my dear students, please download the Hindu application. The Hindu download कर लीजिए आप, Indian Express भी download कर सकते हैं. Apart from English, English will be on the page. But then क्योंकि newspaper से it will be very good कि हम लोग same page पे जुड़े रहेंगे, will be connected, right? ठीक है, perfect, perfect. राइट तो फिर अब आपने ऐसे ही एडिटोरियल पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको साइड रखिए एंड देन उसको समराइज कीजिए। अब अगर हम समराइजेशन की बात करें, लेट मी, आई विल कम हियर देन फॉर दैट केस, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, अगर हम बात करें हिंदू की, आज थोड़ा जनरल टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि ताकि समझ तो आए, बिकॉज वी हैव टू यू नो मेक अ लॉन्ग वे टू गेट थ्रू, so we have to cover a long distance together. So let's just be familiar today, let's just understand what we all will be doing, let's just understand what is the basic and how to move further this with these things, of course, okay, because we have to do this journey together. Okay, so Akshay has just joined in. Akshay, very good evening. We are just discussing, having a common discussion. It's a JD going on, GD going on. Okay, so probably I'm only the speaker, but then yes, all of you can just ping in your questions and your doubts here. Amit Kumar has joined in too. Alright, so we were here, students. Editorial पढ़ने के बाद आप उस editorial को बंद करेंगे, बंद करने के बाद you'll be just summarizing, you'll be making a crisp, short summarizing thing of that, for that. And उसके बाद आप लोग उसमें errors निकालेंगे, उसके बाद you'll put it for the correction part, उसको आप check करेंगे, फिर आप उसको basically evaluate करेंगे. So that evaluation part will come after that. और उस evaluation में that will be the time and point
where each one of you will understand एक्चुअली में आपका लूजिंग पॉइंट क्या है. वोकैबुलरी है, ठीक है, वोकैबुलरी में स्पेलिंग्स, इंग्लिश सब आता है. फिर ग्रामेटिकल में क्या आता है, आपके रूल्स, ठीक है, रूल्स, एरर्स, ये सब चीजें में. सो यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट दैट व्हाट मिस्टेक्स यू एक्चुअली डिड. ठीक है. Hope I'm clear till here to all of you. Keep on putting in yes, okay, fine, because without it I won't be able to understand. Fine, fine, ठीक है. Any doubts till here? Stop me, or if you need to understand, you can let me know. अब स्टूडेंट्स, अब जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हम पढ़ेंगे थ्रू आउट इस बैच के अंदर, उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना. सो आई वुड से सॉल्विंग विद इन टाइम. अगर आप कुछ भी चीज लर्न कर रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, इट्स हियर, वेरी गुड, परफेक्ट. लेकिन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द पेपर विद इन टाइम, यू आर लैकिंग बिहाइंड, यू आर लूजिंग, you're the one who will not score well. And I want all of you to, just get through with flying colors. And that is only possible when you're able to solve within time. So be very quick, be very smart, be very apt. कुछ चीज अगर समझ नहीं आ रही तो उसको ये नहीं कि छोड़ के आगे बढ़ना है, फटाफट. अगर हम आरसीज की बात करते हैं, लेट्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज जस्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू हियर. कई लोग होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरा पैसेज पढ़ते हैं, अच्छे से 10-15 मिनट लगाते हैं. अरे इतना तो टाइम भी नहीं है पेपर में, कम ऑन, हाउ कैन यू इवन अफोर्ड दैट? सो व्हाट माय स्ट्रैटेजी विल बी हियर टू टीच ऑल ऑफ यू अबाउट आरसीज विल बी कि पहले आरसीज में क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस पढ़ लो. क्वेश्चंस के बाद यू हैव टू पुट इन, you have to read the RC, the reading comprehension, that is the passage. Start underlining what you actually have read, what you actually have got to know from the paragraph, from the passage, and फिर उसको solve कीजिए. Trust me, you'll be able to get things very clearly. You'll be able to solve questions more smoothly. Do not worry, we will be covering RC. This was just a short example for all of you. हाँ, keywords, yes, very good Amit Kumar. So keywords, underlining those things, keywords को लिखना, underline करना, plus पहले question पढ़ो. Yes, only 20 मिलते हैं इंग्लिश के लिए. I know. तभी तो मैं बोल रही हूँ कि बच्चों प्लीज अपने 10-10, 15-15 मिनट वो एक पैसेज में मत लगा देना. उसकी भी स्ट्रैटेजी बताएंगे, अभी हम करेंगे, ठीक है, इन माय अपकमिंग सेशंस. एंड डेली प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेशंस. मैं मानती हूँ सब लोग बोलोगे मैम डेली तो कहाँ ही हो पाएगा, बट अगर आप मेरा क्लासेस, इफ यू आर जस्ट अटेंडिंग माय सेशंस, make sure you're religiously following them. Just follow them religiously, do them by heart, attend the class by heart. अगर आपको बेशक बाद में revision नहीं भी करना, that's perfectly fine. But I'm sure even if you'll brush up your sessions, maybe at the time of exam, you'll be able to get through. Fine. Perfect. Then we come on to the last previous year 10 years questions, which is the foremost thing again, very, very important. But ये papers तभी हम पहुंचेंगे. For that, we have to understand our grammatical rules, understand our errors, find out our weakness and our strengths. Then is the right time to go to the previous year questions. सीधा ही जो बच्चे तैयारी करते हैं, या probably, for example, I'm a student. I have, filled up the form. I have exam probably the following month. So what is my strategy now? अरे English ही तो है, छोड़ो ना, मतलब पैसेज आएगा और क्या होगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे, वहीं देख लेंगे, छोड़ो छोड़ो. But this is the point where am I losing, where I'll be losing the marks, because banking segment में हर section qualifying होगा. तो मैं यही सोच के अगर यही approach अपना रखूंगी, I'll be never able to get through. तो अगर मैं इंग्लिश को, आप स्टूडेंट्स अगर 1 hour भी इंग्लिश को दे रहे हैं, that is in my session, in my class, trust me, nobody will lose behind, nobody will be at the back then. ठीक है. मूविंग ऑन टू द स्लाइड नाउ. अभी हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है. किसी को कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज डिस्कस करो, बिकॉज अभी बहुत हमने बेसिक चीजें करी हैं. बेसिकली इट वाज अ वेरी डिस्कशन वाला सेशन गोइंग ऑन. एनीथिंग, कम ऑन क्विकली, यस, नो, कोई डाउट स्टिल हियर? वाज अ वेरी वेरी जनरल थिंग. अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, परफेक्ट, परफेक्ट.
तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, विच इज सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज बेसिकली अ डूअर और a performer. So whosoever, Richa, you're trying to say voice. You mean by voice you mean narration, or by voice you mean that my voice is not clear? Voice clear nahi hai. All right. Rest of the students, please tell me, am I audible clearly to all of you? If they say yes, then Richa, probably you have some technical issue with your. All right, thank you. Then Richa, please, dear, just scroll down your screen once. Okay, fine. Yes, आप yes perfectly. जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं, प्लीज नोट्स बना लीजिए. कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट. एट द एंड ऑफ द सेशन आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. एंड ये नोट्स तो थ्रू आउट आपके साथ रहेंगे स्टूडेंट्स. सो आई बिलीव कि this will be helpful to all of you at all stages of life, be it am I there with all of you or not, right? Perfect, you can. ठीक है students, going further, basically a subject is a person who performs the action. So a thing, a person, a doer or a performer जो कि किसी काम, कार्य, एक्शन, वर्क को परफॉर्म करता है, he or she is called subject. अगर मैं बात करूं, Sohan went to play. So here Sohan is a subject who is probably just performing that particular action. Rohan ate his apple. Again, Rohan is a subject here. ठीक है. वर्ब क्या होगा? वर्ब इज एक्शन. वर्ब अगर हम बात करें, वर्ब इज एक्शन इटसेल्फ. अब रोहन ने खाया. एट इज बेसिकली एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म बाय रोहन. एंड सोहन वॉक्ड टू स्कूल. वॉक इज पर्टिकुलर समथिंग, वो चल करके गया. उसने खाया. ठीक है. तो सोहन इज सब्जेक्ट, वॉक्ड इज वर्ब, रोहन इज सब्जेक्ट, ate is verb, Sohan subject, went is verb. Clear till here? Thumbs up or no? Those very basic thing, ताकि but सबको समझ आए. Our main issue was this. Our main focus was this. इसलिए I have done it from the scratch, from the basic for all of you. I hope I'm clear. Very good. Perfect. Perfect. Moving further. All right. So can I just expect one-liner example by each one of you? Can I just expect that much? Come on, you can just quickly put in one sentence each, and उसमें हम figure out करते हैं कि subject क्या है और verb क्या है. That will be good because हमें Ram goes to market. Very good. Ram is a subject. Goes, जा रहा है वो to market. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं Ram is walking to market. Ram is running to market. तो running, walking, goes ये सब लोग आपके we are studying. Very good. So we subject, studying, क्या कर रहे हैं हम? जो हम एक्शन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, that is verb. We together is a subject here. I am taking an English class. Very good, Richa. Figure it out. इसमें आपने क्या क्या कैसे आपने लिखा है, मतलब क्या आपने लिखा है, आप सब लोग मुझे बताइए. Rohit plays cricket. Rohit is subject. Plays is verb. Very good. Very good. So Richa, I am taking English class. I subject. मैं क्या कर रही हूँ? आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लास. टेकिंग इज अ वर्ब. द पीएम अटेंडिंग द मीटिंग. द पीएम इज अटेंडिंग द मीटिंग. वेरी गुड. सो पीएम विल बी सब्जेक्ट, अटेंडिंग विल बी वर्ब. जो भी आप एक्शन कर रहे हो. होप आई एम क्लियर. अब तो सबको बहुत अच्छे से क्विकली एक लाइक प्रेस कर दो अगर समझ आ रहा है सबको. तो
आई थिंक इट्स वेरी क्लियर बिकॉज हमने बेसिक से समझ आ गया कॉन्सेप्ट. ठीक है, let's go further. Very good. So if we talk about students, we were here. We had covered verb. Now we'll be covering. So we'll be doing how many types of verbs we have, that is singular, plural. No, we'll be extending the session. Don't worry because we got a little late. No. So we'll extend the session. Don't worry, Francis. ठीक है, so do not worry. Okay. So students, अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्म की, so अब जितने भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं, सिंपल सा एक फंडा बता दो, अगर हम सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर के साथ हम हमेशा एस और ई एस का यूज करते हैं हमेशा. जैक प्लेज, एस. ही इज, शी इज, ही हैज, शी हैज. तो ये सब चीजें जिनके साथ हम एस एंड ई एस का यूज कर रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड सिंगुलर. क्लैरिटी. और अगर हम एस और ई एस नहीं लगा रहे तो दे आर प्लूरल ऑफ कोर्स. ठीक है ना. चलिए, जस्ट कम टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जैसे ही मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, द मोमेंट आई एम थ्रू विद द speech of my sorry, I'm through with the delivery of the content, will be solving the questions. हम questions भी करेंगे, so do not worry कि हम अरे ये मैम बहुत बेसिक पढ़ा रही है, बहुत सिंपल पढ़ा रही है. नो, बट ये बेसिक सिंपल मैटर करता है, मैटर करता है. यस. सो क्विकली कर लेते हैं ये. आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर्स, ही, शी, इट. ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन बेसिकली क्या होता है? जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. ठीक है. फर्स्ट पर्सन मैं हो गई, सेकंड पर्सन आप हो गए, थर्ड पर्सन अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट इज थर्ड पर्सन. होप आई एम क्लियर. हर स्लाइड के बाद ना क्विकली थम्स अप करा करो ताकि मुझे समझ आए, मैं स्लाइड से आगे बढ़ूं, और अगर नहीं तो मैं स्लाइड पर रह के समझाऊं. अब प्लूरल की बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे. आर, हैव, वर. तो अगेन, क्योंकि वहां पे तो मैंने बात करी थी एस और ईएस की, बट यहाँ पे तो ये प्लूरल की बात कर रहे हैं हम, तो आर मेनी होगा, मेनी. हैज नहीं होगा, हैव होगा. वॉज नहीं होगा, वर होगा. इज नहीं होगा, आर होगा. सो प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट. एक और मैं आपको रूल समझा दूं, कहीं भी प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हो तो प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज करोगे. प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? दे. बट अगर आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज करोगे. दे के साथ क्या लगेगा? दे हैव ही लगेगा, या फिर आप आर लगा दोगे. अब अगर आप सिंगुलर की बात करो, सिंगुलर ही, शी, इज, हैज. ठीक है. शी हैव तो नहीं बोलोगे ना, शी हैज बोलोगे ना, सिंगुलर की बात है. क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बहुत. प्लूरल वर्ब के साथ यू विल बी यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट. वेरी गुड. राम इज, राम आर तो नहीं बोलोगे, दे आर बोलोगे. ठीक है. सो दे आर, दे हैव. अगर हम कॉमनली बात करें, देयर आर फ्यू कॉमन वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर बोथ, दैट इज हैड, डिड. एग्जांपल, ही हैड, he can, he did, they had. Clear? Not clear? या कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा? Very good. So it's we are, we together, we are, I am, I was, I were नहीं. ठीक है ना. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे. ऑलराइट. होप आई एम क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग फर्दर. Yes, now this is quite interesting part which we're doing now. Very interesting, very interesting. So अब हम करेंगे student types of verb. Types of verb. There are 27 types. 27 types of helping verbs जिनको हम auxiliary verbs भी बोलते हैं.
जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। We were, yes, that's right, Mridul, right. We is plural, no, तो plural ही यूज करोगे, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं 27 टाइप के होते हैं। अब हम सब करेंगे 27 टाइप। इज, एम, आर, was, were, ठीक है। ये रहा, is, am, are, was, were, always followed by ing form of the verb। अब अगर आप is, am, are की बात करो स्टूडेंट्स, तो इनके साथ तो हमेशा ing फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा ना, हमेशा। Jack is going to school. They were playing football. I am teaching. So am V1 and ing. V1 plus ing, of course. Ing is always use the V1 form of verb. That's very, very clear. And the basic concept we had actually read in our childhood days, in our school days. So Jack is going to school. Is लग गया, ing लग गया. They were playing. Were के साथ ing. अब समझ आया कि is, am, are, was, were are followed by the ing. ठीक है, क्विकली मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट। यहां तक क्लियर? फर्स्ट बॉक्स इज क्लियर, शैल वी स्टेप ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स? Okay, so next box is do, does, did, that is the first form। Alex did her homework, did के साथ first form लगा। Does Alan study well? So it's a question mark here, और does लग रहा है। does के साथ आप कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, so does के साथ आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना। डू यू गो टू स्कूल? डू, यू के साथ गो। गो, वेंट, गॉन तीन फॉर्म्स होती हैं, तो गो इज द फर्स्ट फॉर्म। डिड हर होमवर्क, डिड के साथ हमेशा। तो कई बच्चे क्या कहते हैं, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो डिड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उनको लगता है अरे यार डिड है तो V3 आएगा। तो वो बच्चे क्या बोलते हैं, सुन लो अब मेरी बात। डिड यू टॉक्ड टू हर? वो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। जो भी बच्चे बोलते हैं रॉन्ग है, क्योंकि यस, डिड यू टॉक टू हर? डिड यू टॉक, क्योंकि हम डिड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, V1 फॉर्म लगेगी, V3 नहीं आएगा। प्लीज प्लीज, मैं बहुत मतलब इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मुझे इतना याद है, याद है मतलब आई कैन जस्ट मेक श्योर आप लोगों को ये याद रहेगा कि यस मैम ने बताया था, जिनको अभी तक नहीं पता था, जिनको अभी तक नहीं पता था। क्विकली moving further, hope I'm clear with the second box। Moving on to the third box here, has, have, had, V3 form। Always, did you talk? Very good, very good। ठीक है, has, have, had के साथ V3 form। Children have gone to play। Go, went, gone होता है स्टूडेंट्स, go, went, gone। So children have gone to play। She has done her homework। Do, did, done, थ्री फॉर्म्स होती है ना, do, did, done। ठीक है, she has done her homework। She had completed her task। has, have, तो has, have, had के साथ आप V3 फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, बॉक्स 3 क्लियर? जल्दी जल्दी कवर किया है हमने। मूविंग टू बॉक्स 4, where this says I'll just use a different color so that clarity रहे। ठीक है, होप आई एम क्लियर। बी, बीन के साथ हम ing फॉर्म यूज करेंगे। has been, has been studying, they have been eating, they have been watching, she has been sleeping। ठीक है ना, समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है ना? सो मेन हैज बीन स्टडिंग, क्योंकि बीन लगा रहे हैं, हैज लगा रहे हैं, तो एनीवेज हमने अभी ऊपर में यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, बीन लगा रहे हैं तो स्टडी के साथ हम आईएनजी लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? विल बी डूइंग दिस वर्क, सो ही विल बी डूइंग हिज वर्क। ठीक है, शी हैज बीन स्टडिंग, बी लग गया, यहाँ बीन लग गया। क्लैरिटी है स्टूडेंट्स? बहुत खिचड़ी मच गया है स्लाइड में, बट दिस वाज टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑलराइट। सो अब नेक्स्ट वर्ड्स पे हम जा रहे हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नाउ, इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आफ्टर ऑल ऑफ दिस V1 फॉर्म इज यूज्ड। आफ्टर ऑल ऑफ दिस V1, after all these V1 फॉर्म यूज होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, खत्म। बहुत अच्छा तरीका है ना? इट्स अ राइमिंग स्कीम। ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। अब मस्ट, ought to, dare, need, ये भी आपके सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। क्लैरिटी यहां तक समझ आ रहा है? She can eat fast, can. They might come tomorrow. He might come tonight. मैं ये भी बोल सकती हूँ, he might come tonight. ठीक है ना? He will go to play. She will eat. मैं दोबारा दूसरा भी बना देती हूँ साथ साथ, अगर समझ नहीं आ रहा तो। She will eat. He will go to play. He might come tomorrow. He might come tonight. She can eat fast. She can sleep. She can sleep fast. She can run fast. Run, sleep, eat, drink। तो कैन के साथ हो गई, ये माइट के साथ हो गई। विल के साथ, he'll go to play, she'll go to play, he'll go to sleep। यस, अब हम बात ought to पे भी आएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। ought to का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ओके रिचा, I'll say she can eat fast, वो बहुत जल्दी खाना खा सकती है, बहुत जल्दी खा सकती है। ही माइट, वो शायद कल आए, या वो शायद आज रात में आए। इट्स माइट, दैट्स व्हेन यू नॉट श्योर ऑफ। जब आप श्योर नहीं हो रिचा, तो माइट यूज करोगे। ही माइट, शी माइट, रिचा माइट कम टू दिल्ली, रिचा माइट कम टू दिल्ली टुनाइट। ठीक है रिचा, होप आई एम क्लियर। ही विल गो टू प्ले, रिचा विल गो टू प्ले, रिचा will go to Richa will go for running। ठीक है, अपना नाम यूज कर कर जब सेंटेंस बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आता है। Why only Richa? Okay, मृणल will go to play। ठीक है, मृणल can eat fast, मृणल can run fast, मृणल can drink fast। ठीक है, तो can वाले वर्ड हो गए। अब 5 minutes ought to be is long enough। अगर हम ought to की बात करें स्टूडेंट्स, ought to को हम हिंदी में या इंग्लिश में ही क्या बोलते हैं? प्रोबेबल। So 5 minutes probably is long enough. 5 minutes probably is long enough. 1 hour ought to be long enough. 1 hour probably बहुत लंबा टाइम है।
समझ आ गया? ऑट टू जितने भी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ऑट टू कहाँ यूज करना है, समझ आ रहा है ऑट टू को कहाँ यूज करना है? यस और नो, आगे बढ़े या नहीं? ओके फाइन, मूविंग फर्दर. So are you all enjoying today's session, by the way? Are you all enjoying today's session? Yes, very good. Okay. अच्छा, स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम आपकी क्लास मेरे से मिस हो गई है. ओके मोनी मलिक, मोनी हेलो, वेलकम टू द क्लास. अब आप रिव्यू कर लेना सेशन को. यू ऑट टू लिसन केयरफुली. जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम दोबारा से बताओ. So 5 minutes ought to be long enough. You ought to listen carefully. You ought to leave now. Ought to. होप आई एम क्लियर. बहुत खिचड़ी बन गया है मुझे लग रहा है यहाँ पे. बट क्योंकि ऑट टू वाले वर्ड्स थे मैंने अलग लिख दिए. ठीक है. यू ऑट टू लीव नाउ. यू प्रोबेबली लीव नाउ. हम बोलते हैं ना, अरे यार प्लीज भैया जाओ. यू प्रोबेबली लीव नाउ. यू ऑट टू लिसन केयरफुली. You ought to go by yourself. You probably have to go by yourself. ठीक है. Hope I'm clear to all of you. Very good, fine, great. अब जितने भी बच्चे आई शैल और आई विल की बात, आई ought to more focus on English. Is it right, ma'am? I ought to focus more on English. I ought to focus. मतलब मैं probably focus करना चाहती हूँ किस पे? ज्यादातर इंग्लिश पे. I ought to focus more on English. I ought to more नहीं होगा. जितने भी बच्चे बोल रहे हैं आई शेल वर्सेस आई विल, डोंट वरी बच्चों, प्लीज माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स. जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, पहले उस पे फोकस करो. ये मत सोचो आई विल शैल कुड कैन नहीं हुआ. ठीक है. सेशन दोबारा भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा भी देख लेना. ठीक है. चलिए चलिए आगे बढ़े अब. यस और नो? ऑलराइट, थैंक यू. देन रिनल कीप ऑन शेयरिंग. मतलब on sharing if you really liking the session, if you really liking my teaching style, keep on sharing. Did you enjoy? Did you like? Did you understand? Did you like the content quality and the way of teaching style? Everything, everything. Yes or no? All right, thank you. चलो next, moving further. अब हम rules पे जा रहे हैं quickly. Thank you, Mrinal. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. स्टूडेंट्स, ये जर्नी हमने साथ में तय करनी है, साथ में ट्रैवल करके जाना है. इफ यू लाइकिंग द सेशंस, यू कैन टेल मोर ऑफ योर फ्रेंड्स टू जॉइन इन द बैच. थैंक यू. ऑलराइट, जल्दी से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स?
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसे कि हमें नाम बता रहा है, एक अग्रीमेंट होता है, कुछ नहीं, एक एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट एंड बिटवीन द वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो भी तालमेल है, जो भी अग्रीमेंट है, जो भी सेटलमेंट है, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर हम रूल्स की बात करें, द सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट के फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, द सब्जेक्ट और द वर्ब मस्ट मैच और अग्री इन नंबर। जैसे कि मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहां तक तो अब समझ आ गए, इतने सब होशियार हो गए हो इंग्लिश में कि सबको समझ आ गया यहां तक। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट, क्वाइट श्योर। वेरी गुड। अब डॉग की बात करें, बेचारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही नंबर लगाएंगे ना उसके साथ। द डॉग बार्क तो नहीं बोलेंगे, द डॉग बार्क्स बोलेंगे एट एवरी साउंड ही हियर्स। और मुझे ये भी पता है, कई कई स्टूडेंट्स यही बोलते थे, डॉग बार्क, द डॉग बार्क्स, और कई ऐसे भी बोलते हैं द डॉग बार्क्स और द डॉग बार्क। नहीं, द डॉग बार्क्स एंड द डॉग्स बार्क। अगर मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ, प्लूरल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे वो बार्क करेगा, वो बार्क्स नहीं करेगा। ठीक है, क्लैरिटी? ओके, द गर्ल, सेकेंड, द गर्ल हैज टॉक्ड टू मी, क्योंकि हमने गर्ल लगाया है यहाँ पे। द गर्ल हैज बीन टॉकिंग टू मी, अब बीन लगाया है तो आईएनजी तो लगेगा ही। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, इससे चीजें बहुत क्लियर होंगी। कभी कभार ना सेंटेंस दिए होते हैं, पैरा जम्बल्स दिए होते हैं, तो उसमें क्या किसके साथ कनेक्ट करना है, या सेंटेंस में एरर कहाँ निकालना है, तो बहुत हेल्प करता है। गर्ल सिंगुलर, जम्प्स द रोप, नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल टू स्पीक राइट नाउ, नीदर ऑफ देम। ठीक है, क्लैरिटी यहां तक क्विकली बता दो मुझे, फटाफट समझ आया नहीं आया तो भी बता दो। परफेक्ट। थर्ड मीन्स, थर्ड मतलब थर्ड सेंटेंस की बात कर रहे हो आप? फ्रांसिस और मोनी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस की डिस्कस करते हैं। द गर्ल हैज बीन टॉकिंग टू मी, लड़की, अच्छा यस सॉरी रिचा, आई फॉरगॉट, मुझे उसको हिंदी में बताना है। द डॉग बार्क्स, सिंगल डॉग है तो कुत्ता भौंकता है, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में। द गर्ल हैज टॉक टू मी, लड़की ने मुझसे बात करी, हैज। द गर्ल हैज बीन टॉकिंग टू मी, द गर्ल हैज बीन टॉकिंग टू मी, मुझसे बात कर रही है, प्रेजेंटली भी बात कर रही है, कर रही है, आईएनजी मतलब कर रही है अभी भी। द गर्ल जम्प्स द रोप, लड़की ने, रस्सा कूदते हैं ना, जम्प्स द रोप। एंड द गर्ल हैज बीन टॉकिंग टू मी, कॉन्टिन्यूअस, अभी भी कर रही है। होप आई एम क्लियर मोनी, होप आई एम क्लियर। नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल टू स्पीक राइट नाउ, कोई भी अवेलेबल नहीं है अभी बात करने को। ठीक है, नीदर वर्ड यूज किया है हमने यहाँ पे। So hope I'm clear to all of you students still here. ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट। अब ऐसे ही हम मल्टीपल रूल्स और भी करेंगे। अभी तो हमने कुछ रूल्स करे, सब्जेक्ट वर्ब करा, फिर वर्ब के टाइप्स करे। ठीक है, फिर हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टुगेदर किया, वो क्या होता है। देन probably we did the first rule, and in the following upcoming classes we'll be just going through with more rules now. ठीक है, so I hope you should just wind up the class now. It's time to go.
Chalo, clearly, all right, it's time to wind up the session. And here I'm saying good night, goodbye to all of you. I'll see you all tomorrow by exactly same time, 8 p.m. And hope you all enjoyed the session. Put in a quick thumbs up if you all enjoyed the session. Do tell your friends as well. You have seen the quality, you have seen the content, you have seen the teaching style and everything. All right. Do let your friends know and keep on sharing. All right. Thank you so much.